चलिए स्टार्ट करते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट model auxiliaries. Okay, we simply call them models. Okay, and I am going to give you a complete guide to model auxiliaries. So the first question is, what are model auxiliaries? Model auxiliaries or models are helping verbs. Okay, in the previous classes and in the chapter of auxiliary, I said that the auxiliary has two categories, the primary auxiliaries and the modal auxiliaries. And the main function of an auxiliary verb is to help, to assist the main verb. Okay, clear? Then its role is also as an as a helping verb. Then what actually they function as a helping verb? Okay, why models are different from the primary auxiliaries? Because they express possibility, the ability to happen something possible. Okay, that shows किसी चीज का संभावना है, possibility है. And then necessity, that shows that something is necessary, कुछ चीजें जरूरी है. And then it also expresses permission. Clear? To grant permission or to take permission. And then ability, able. Okay, clear? Ability means when something is able for a particular function. Clear? And then obligation. Obligation. The obligation is like zimmedari, farz, duty. Okay, that is showed, expressed. And then probability. Probability. Have you ever played Ludo? In the Ludo, when you throw the dice, okay, clear, 6 आने की chances होती है ना? That is probability. Probability. You might have studied a chapter in mathematics, probability. Clear? Yes, sir. Suppose when you toss a coin, there are two sides of a coin. One is the tail and head side. The probability of coming ahead is 1/2. Okay, or 2/2. Yes, when you toss a coin one time, the probability is coming of one head is one time. एक हेड तो आना ही आना है या एक टेल आना ही आना है. Clear? Okay, that is probability. And other similar meanings in a sentence. So actually the model function this way. When we need to express something like possibility, necessity, permission, ability, obligation, probability, and other similar meanings, we use certain words and they are called as models. Clear? And there are certain rules in the grammar that decides their placement in a sentence. Okay, they do not change their form based on the subject and are always followed by the base form of the verb. What you have to remember, that they do not change. Rule number 1, they do not change their form. इनका रूप बदलता ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में, कभी भी नहीं बदलेगा. Okay, clear? The subject and the tense do not decide their form. जैसे हम लोगों ने देखा ना, subject and tense decide the form of the primary auxiliaries. Clear? So they are not decided by the subject and tense. The form is never changed. And the other thing, that whenever there is a model and after that whenever a main verb is introduced into the sentence, then only base form of the verb, that is called V1, is attached or applicable. वही लगता है. यानी मॉडल के बाद आंख बंद करके, चाहे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड हो, सिंपल हो, जो भी हो, व्हाटएवर, लंबा चौड़ा पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, आपको मॉडल के जस्ट आफ्टर क्या रखना है, जो अगर वर्ब लगाते हैं तो V1 आता ही आता है.
और कभी मॉडल्स तो V1 के बिना आता ही नहीं है, ठीक है। तो इज आर ऑलवेज वर्ड पर भी कंसिडर करें, फॉलोड बाय द बेस फॉर्म, यानी हमेशा मॉडल जो है वर्ब 1 को फॉलो करता है, सिर्फ वर्ब 1 को फॉलो करता है, और कोई वर्ब 2 को नहीं, 3 4 5 को, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलिए, ये था मॉडल का ओवरव्यू। अब हम लोग देखते हैं क्या है मॉडल्स, कैसे काम करते हैं, कैसे इन मीनिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज ऑल टुगेदर यानी पूरा का पूरा कितना, 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जिसमें सेमी मॉडल्स भी इंक्लूडेड हैं। सेमी मॉडल्स, सेमी का मतलब आधा, ठीक है। कुछ मॉडल्स जो प्रॉपरली इन मीनिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ सेमी तरीके से, लाइटली हल्के फुल्के तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, हल्का फुल्का टच देके आते हैं, कबड्डी खेलते हैं कभी कभार इनके साथ, ठीक है। हाँ, ओके, क्लियर, वो बस छू के वापस आ जाते हैं, तो एसेंस आ जाता है ना। कभी कभी देखो, एक दो तरह के जूस होता है, एक मार्केट से तुम लोग खरीदते हो, उसमें हल्का एसेंस डाल दिया जाता है, ठीक है, और एक ओरिजिनल घर में या जूस सेंटर पे बनता है, पूरे पल्प को डाल करके अच्छे से, ठीक है। ठीक उसी तरह से कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ओके, हियर आर ऑल द मॉडल्स, समरी ऑफ ऑल मॉडल वर्ब्स कवर्ड, ठीक है। क्या क्या मॉडल्स हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। 9 जो है ना, ये 9 मॉडल्स मेन मॉडल्स हैं। बाकी आउट टू, नीड, डेयर, क्लियर, एंड यूज टू, ये सब सेमी मॉडल्स कंसिडर किए जाते हैं। हमने टैग कर दिया है कैन जो मॉडल है वो क्या एक्सप्रेस करेगा, एबिलिटी, ओके, और क्या, परमिशन, और क्या, पॉसिबिलिटी, हिंदी में क्षमता, अनुमति, संभावना। कुड, पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, भूतकाल में क्षमता, विनम्र, अनुरोध। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज विनम्र एंड अनुरोध? अनुरोध इज रिक्वेस्ट एंड विनम्र इज पोलाइट। में, परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रेयर, प्रेयर समझते हैं, प्रार्थना, क्लियर, दुआ, बद्दुआ, ये सब में भी आता है, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, डू यू रिमेंबर? यस। नाउ माइट, लेस पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, कम संभावना, विनम्र अनुरोध। एंड शैल, फॉर्मल फ्यूचर प्रेडिक्शन, प्रपोजल, औपचारिक भविष्यवाणी, प्रस्ताव, प्रपोजल्स देते हैं ना, ठीक है। अरे उस प्रपोजल की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग प्यार में देते हैं, बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं ना, ठीक है, क्लियर। तो कोई भी प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखा, जैसे मैंने अर्पित को प्रस्ताव रखा कि अर्पित, ठीक है, तुम अगर ये कर दोगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्लियर, आई वांट टू डू दिस बिजनेस विथ यू, एनीथिंग, उसको प्रपोजल। शुड, एडवाइस, ड्यूटी, एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करता है, सलाह, कर्तव्य, उपेक्षा, सॉरी अपेक्षा, ठीक है। विल, फ्यूचर एक्शन को, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को, भविष्य की क्रिया, दृढ़ निश्चय। वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट, अच्छा मैं एक एक को अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। पोलाइट रिक्वेस्ट, इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी, विनम्र अनुरोध, और काल्पनिक स्थितियां, काल्पनिक इमेजिन करके, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से उसको कोई लेना देना नहीं है, ओके, क्लियर। हाँ, इट हैज नथिंग टू डू विद द फैक्चुअल थिंग्स, विद द रियल थिंग्स, इट इज जस्ट इमेजिन्ड। कहते हैं लोग इमेजिन करो, समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पर लग गए और तुम आसमान में चिड़ियों के साथ उड़ रहे हो, और इधर 2 कबूतर, इधर 2 कबूतर, समझ में आ रहा है, और तुम लोग बातें कर रहे हो, ठीक है। तो इमेजिनरी सिचुएशंस। मस्ट, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन अभी बताया था ना, कर्तव्य, ड्यूटी। स्ट्रॉन्ग, पॉसिबिलिटी, अनिवार्यता, नेसेसिटी, बाध्यता, ठीक है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की जिम्मेदारी में बाध्य है ना, पापा बाध्य हैं, समझ में आ रहा है, एक टीचर बाध्य है, क्या वो ऑब्लिगेशन है ना, कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा ऑब्लिगेशन क्या है कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आया है, उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसको लेवल ऑफ एजुकेशन उस तक इंपार्ट किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। हम ये ना देते हैं तो मैं अपने आप में अपराध कर रहा हूं,
क्लियर? माँ बाप जो बच्चों के लिए कुछ करते हैं वो उनका ऑब्लिगेशन होता है, ड्यूटी होता है, ठीक है, उनको करना ही करना है, एक साइकिल है बेटा जिंदगी का। ओके, उस पर हम बाद में जाएंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना, आउट टू मोरल ड्यूटी, समझ रहे? ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है, मोरल ड्यूटी है। ओके, लॉजिकल एक्सपेक्टेशन, नैतिकता, तार्किक अपेक्षा। जैसे अभी देश के अंदर नैतिकता खत्म हो गई है ना, मोरल ड्यूटी लोगों की खत्म हो गई है। सब सोचते हैं मेरा थोड़ी जिम्मेदारी है, तो सरकार की जिम्मेदारी, सड़क साफ कौन रखेगा? सरकार रखेंगे, ठीक है। सरकार को चुनना जो है, वो सोचते हैं सरकार को, सरकार से हमें क्या फायदा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोरल ड्यूटी है हम लोगों की। जैसे टीचर सोचते हैं बच्चों को, अरे मेरा बच्चा थोड़ी है, बिगड़ रहा है, गंदा काम कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बैड हैबिट्स कर रहे हैं, मेरा बच्चा थोड़ी है, मैं क्यों बोलूं, मैं पढ़ाऊं निकलूं। आजकल तो यही हो रहा है ना मार्केट में, ठीक है, बिजनेस। हाँ, तो यहाँ मॉरल ड्यूटी नहीं है, मॉरल ड्यूटी है ना एक टीचर का। देखो, टीचर भी तो दूसरा माँ बाप कहा जाता है। तो माँ बाप का क्या काम, कर्तव्य है, क्या इस ऑब्लिगेशन है, क्या बाध्यता है कि बच्चों को समझाए, प्यार दे, कॉपरेट करे, सपोर्ट करे, ठीक है। उसके बाद नीड, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट, जरूरत और आवश्यकता, ठीक है। सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। हाँ, किसी चीज की आपको आवश्यकता है, जरूरत है। डेयर, करेज, चैलेंज, साहस और हिम्मत, ओके। और यूज टू, पास्ट हैबिट, पास्ट स्टेट, पुरानी आदतें, भूतकाल की स्थितियां। तो हम 13 मॉडल्स को वन बाय वन करके जो है ना, पूरे इसके फंक्शंस के साथ डिस्कस करेंगे। ये देखो, अरे क्लियर? तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा है? माइक ऑन करके बोलिए बेटा, मजा आ रहा है? ओके, नमक चीनी बराबर है? सही है। और नमक डाल दें? नहीं, टेस्ट पक्का बढ़िया है। हाँ, तो लेट्स कुक द मॉडल टुडे। ओके, कैन, सबसे पहला कैन। कैन को किस लिए यूज होता है? कर सकते हैं, सकता, सकती है, सकते हैं। जैसे आई कैन, क्या शो हो रहा है? एबिलिटी। मिसाल के तौर पर हम नहीं पढ़ा सकते हैं, मैं मैथमेटिक्स 10th क्लास तक पढ़ा सकता हूँ, 11th 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट, मैं एबल नहीं हूँ। दो मैं एडन का डायरेक्टर हूँ, दो मेरे अंदर मैथमेटिक्स के फैकल्टीज आते हैं, समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, बट मैं नहीं पढ़ा सकता बिकॉज मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। यस, आई कैन टीच इंग्लिश बट आई कांट टीच मैथमेटिक्स, दैट आई एम नॉट एबल। ओके, समझ में आ रहा है? सपोज अ काउ, you know, can't eat meat and a lion can't eat grass, they are not able. Okay, I can speak English, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मीन्स आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव द एबिलिटी, कर सकते हैं, क्षमता है मेरे अंदर। क्लियर? एंड देन द सेकेंड वन इज परमिशन, अनुमति। अनुमति मांगने या देने के लिए, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या मैं एबल हूं? देखो, एक चीज है, इसमें एक एसेंस छुपा रहेगा। ओके, जैसे तुम हमको किस तरह का क्वेश्चन करोगे इंसा कि सर, अभी मैं 9th और 10th में पढ़ रही हूं, तो कैन आई सी एंड रीड सम ऑफ द बुक्स ऑफ क्लास 11th। अब तुम ये हमसे जानना चाहते हो कि सर क्या मैं एबल हूं, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं 11th की बुक्स को भी समझ सकूं। यहां सीधा का सीधा तुम हमसे सवाल तो कर रहे हो, लेकिन किस बुनियाद पर? एबिलिटी के बुनियाद पर, समझ गए? तो हमसे सीधा सीधा हमसे ये पूछना चाह रहे हो कि क्या मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं 10th के बाद 11th की बुक भी अभी समझ सकती हूँ? समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम 11th की भी बुक को समझ सकते हो, देन आई विल से यस यू कैन, एल्स आई विल से नो।
तो यहां भी कैन आई यूज योर फोन का मतलब होता है इट्स नॉट अ सिंपल परमिशन। वहां पे इस तरह की परमिशंस ले होंगे जहां पर जैसे कैन आई क्लाइंब, जैसे कैन यू क्लाइंब द स्टेयर्स, ठीक है, सवाल पूछ रहे इंशा मेरे घर पे आई, मेरा घर मान लो 10 मंजिले पे है, ठीक है, और लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, तो मैं इंशा से पूछूंगा, सवाल करूंगा कैन यू क्लाइंब द स्टेयर्स, क्या जानना चाह रहे हैं, एबल हो, 10 मंजिले चढ़ जाओगे, पैर में दम है? तो सी विल से नो सर, I am fit and fine and healthy, but I'm not able. I cannot walk or climb the stairs right now. And you know, to the 10 story, it's very difficult for me. समझ गया? हाँ जी हाँ सर। इंशा बोलो। सर मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कनेक्ट कर लूँ? Come back soon. Okay. Now let us come to third one. Possibility. Permission समझ गया? ओके, पॉसिबिलिटी, संभावना, इसमें भी एबिलिटी वाला पॉसिबिलिटी, कुछ होने की संभावना दिखाने के लिए कि भाई बादल तो है क्या, लेकिन बादल के अंदर वो बादल एबल है बारिश बरसाने के लिए, समझ रहे हो? अब हम बादल को वॉच किए, हमें लगा कि हाँ बादल के अंदर बादल एबल है कि आज बारिश बरसा दे, तो पॉसिबिलिटी विद एबिलिटी, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, क्यों? क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी के साथ साथ वो एबिलिटी दिख रही है बादलों में कि बारिश, बादल घने घिरे हुए हैं, वो एबल है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, हादसे कभी भी हो सकते हैं, क्या? पॉसिबिलिटी विद एबिलिटी, यानी वहां गड्ढा गुड्डी है, उतना गड्ढा गुड्डी काबिल है कि वो एक्सीडेंट करवा सकता है। क्लियर? तो ये थीम को समझना होगा। देन इज रिक्वेस्ट, अनुरोध, कोई चीज मांगने के लिए, कैन यू हेल्प मी, यहां भी वही सेंस है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यानी तुम एबल हो, सिंपल, ठीक है। सपोज किसी स्टूडेंट ने मुझे फोन किया, हेलो सर, यू नो आई नीड नोट्स ऑन मॉडल्स, तो कैन यू गिव मी राइट नाउ, तो आई से नो आई कैन नॉट। अब वो कहेगा अरे सादिक सर से फोन किए हैं जो चुटकियों में सारा नोट्स और चीजें बना के भेज देते हैं बच्चों को, और ये कह रहे हैं नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, सर कैन यू प्रोवाइड मी द नोट राइट नाउ, क्या अभी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कभी आप एबल हैं? नो आई एम नॉट, आई कैन नॉट प्रोवाइड राइट नाउ, इट क्या सो गया कि मैं अभी एबल नहीं हूं, आई माइट बी बिजी, आई माइट बी समवेयर, आई माइट नॉट हैव द डिवाइसेस राइट नाउ विद मी। ओके, समझ गया? कैन आई हैव सम वाटर, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? ओके, जैसे पहले के जमाने में टचेबिलिटी था, टचेबिलिटी समझते हो ना, अनटचेबिलिटी, कि कुएं के पानी को छू नहीं सकते हैं, तो कुएं के पानी को आप कैन आई टेक वाटर फ्रॉम द वेल, मींस एम आई एबल टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल, इज माय कास्ट परमिटेड थ्रू यू टू टेक वाटर, टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल। यहां भी एबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन एक तो प्योरली एबिलिटी, एक परमिशन विद एबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी विद एबिलिटी, एंड देन रिक्वेस्ट विद एबिलिटी, सेंस वही होगा। समझ गया? कैन का यूज आई होप कभी भूलोगे नहीं तुम लोग। आगे बढ़े। कुड, कर सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है। कुड कैन का पास्ट है, पास्ट एबिलिटी, बीती हुई योग्यता, समझ रहे हो इंशा? जब एग्जाम नहीं निकलेगा तो तुमको हम कहेंगे यू कुड, समझ में आया? हाँ, तुम बहुत छुट्टी मार रहे हो, टाइम नहीं है। बताओ, मैं 2-2 घंटा तुम्हारा 2-2 क्लास अरेंज किया था और तुम एक ही क्लास कर रहे हो दिन में, कैसे क्या होगा? हाँ बेटा, ओके देन पास्ट एबिलिटी, बीती हुई योग्यता, शी कुड स्विम व्हेन शी वाज 5, यानी जब वो 5 साल की थी उसके वो योग्य थी, अब नहीं कह सकते,
वो 5 साल की थी तब तैर सकती थी, अब का नहीं पता, लेकिन 5 साल पहले। जैसे when I was in standard 2 I could draw well, I was a good artist, I was you know I was a good artist, but now I'm not able. So I could draw well but I cannot now. ठीक है, तो जो हम कर सकते थे, I could run fast in my childhood, बचपन में मैं तेज दौड़ सकता था, but not now. Now polite request, नर्म अनुरोध, could you help me, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट, could you help me, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? could I borrow your book, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूं? तो जब भी किसी से प्यार से रिक्वेस्ट करके कुछ मदद मांगना हो, लेना हो, कुछ कहना हो, तो इसका इस्तेमाल होता है could you please sit there, क्या आप वहां बैठ सकते हैं? could I take your seat, क्या मैं आपका सीट ले सकता हूं? could I take one piece of samosa from your plate? then no, समोसा नहीं दूंगा, ठीक है, चाहे तुम कितना भी पोलाइटली पूछो। ओके, तो could I borrow your book, could I, समझिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे किसी को प्यार से कहते हैं ना, भैया थोड़ा आप उस जगह बैठ जाएंगे, हमें यहाँ बैठने देंगे? could you brother, could you take my seat, could you replace my seat with your seat? ठीक है, सिंपल। एंड देन पॉसिबिलिटी, संभावना, कमजोर संभावना, समझ रहे हो? संभावना, उधर कैन में संभावना था, कैन में क्या था? क्लियर, संभावना, लेकिन कुड में संभावना है लेकिन कमजोर संभावना है। इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, क्योंकि कल किसी ने देखा। समझ में आ रहा है? हमने कह दिया, मान लो इट कैन रेन टुमारो, कैन लगा दिया, संभावना बता दिया, पता सुबह उठे और बादल जो है ना चुपचाप भाग गया रातों रात, तो क्या कर सकते हो? सो इसीलिए इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। शी कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि वो घर पर थी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है ना, फिर मैं वापस जाऊं, देखा पता चला वो मार्केट चली गई हो, लेकिन संभावना है, कमजोर है। शी कुड बी एट होम। तो जब भी कमजोर संभावना की बात करेंगे तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट एबिलिटी, पास्ट में क्या कर सकते थे? पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, यहां कुड का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, समझ गया? आगे बढ़ते हैं। अब में सकता है, सकते हैं, सकता था, हो सकता है, यहां भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ज्यादा संभावना। इट मे रेन टुडे, कैन में नॉर्मल संभावना, कुड में जो है क्लियर कमजोर संभावना, एंड पॉसिबल में ज्यादा संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इट मे रेन टुडे, ठीक है। शी में कम लेट, वो देर से आ सकती है, संभावना है लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला है, क्योंकि तुमने देखा तो उसे घर पे जब तुम आए थे तो ऑलरेडी नहा धो रही थी, फ्रेश हो रही थी, तो पॉसिबिलिटी है कि जाहिर सी बात है कि वो लेट से आएगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। शी में कम लेट, ठीक है। दूसरा परमिशन, बोलते हो ना, मे आई कम इन सर, लेकिन परमिशन कौन सा? अनुमति कौन सा? फॉर्मल एंड पोलाइट। फॉर्मल यानी ऑफिसेज में, क्लासेस में, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है, या फिर ऐसा जहां पर रैंकिंग हो, सीनियरिटी जूनियरिटी का मामला हो, वहां पर आपको फॉर्मली और पोलाइटली परमिशन कैसे लेते हैं? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इजाजत दी तो, अगर मैं कह दूं कैन आई कम इन, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या मैं एबल हूं आने का अंदर? ठीक है, तो बॉस कहेगा नो यू कैन नॉट, एबिलिटी देख रहे हो मेरे ऑफिस में आने का। लेकिन अगर तुम कहो मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन का मतलब ये होता है कि सर अगर आप इस बात को एग्री करें कि मैं अंदर आ जाऊं तो आऊंगा, आप हाँ करेंगे तो आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। ठीक है, कैन आई कम इन भी परमिशन है, लेकिन
एबिलिटी वाला। और ये मे आई कम इन, यू मे लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो। अब इसमें क्या है, अभी बताया ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं भगा नहीं रहा हूं, समझ रहे हो। हाँ, जैसे अर्पित ने कहा कि सो मे आई गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, मे आई लीव द क्लास नाउ। तो उसका क्या मतलब है, अर्पित ये कहना चाह रहा है कि अगर आप परमिशन देंगे तभी मैं जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। आपने मना कर दिया तो नहीं, ये आपके ऊपर है। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, तुमने दिमाग लगाया था, मैंने भी दिमाग लगाया, यू मे लीव नाउ, तुम जा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम गए तो तुम जिम्मेदार, हम नहीं, हमने छुट्टी नहीं दी है, हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, तुम गए तो अपने ही इस पे गए, हमारे इस पे नहीं गए। कल को तुम कहोगे सर आप ही नहीं बोले क्लास से जाने के लिए, मैंने कहा मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। और इसका यूमे गो का मतलब होता है कि तुम पर अपना डिसीजन खुद लेके यहां से जा सकते हो, मैंने रोका नहीं है। और न मैं जाने को कह रहा हूं, न मैं रोक रहा हूं, न जाने को कह रहा हूं, ठीक है। चलो देखा, अंग्रेज सब ऐसे ही स्मार्ट नहीं था ना। अब ब्लेसिंग्स एंड विशेस, आशीर्वाद और शुभकामनाएं, समझ आ रहा है। हाँ, आशीर्वाद लेते हो, शुभकामनाएं देते हो ना, हैप्पी होली, समझ में आ रहा है, ठीक है, हैप्पी दिवाली। ओके, अब आ रहा है हैप्पी ईद आ रहा है, नहीं इसमें हो वाला नहीं होगा। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, यहां यूज होता है आशीर्वाद शुभकामनाएं, ठीक है। बाबा लोग से आशीर्वाद लेते हो ना, तो आशीर्वाद सिर्फ 2-4 लोगों से लो, एक माता पिता से, एक गुरु से लो, बस, और किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुरु में भी वो धर्म की जो शिक्षा दे, वो भी किताब का शिक्षा, समझ में आ रहा है उनका। बाकी यू राह चलते कोई भी तुमको आशीर्वाद दे दे, समझ में आ रहा है। हाँ, फकीरों से आशीर्वाद नहीं लेते, फकीरों को भिक्षा देके उसका पेट पूजा करा के उसको कपड़ा लत्ता उसकी जरूरत पूरा करते हैं, ठीक है। यूं ही राह चलते कोई भी जो है ना वेशभूषा बना ले बाबा का और मौलाना साहब का, समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं कि हर जो दिखता है, हर चमकते हुआ चीज सोना नहीं होता, इसीलिए ठोक बजा के लेना है चीजों को, लेकिन ठोकना नहीं है किसी को। आई बात समझ में, हाँ, ठोक बजाने के चक्कर में ठोक दिया जाकर के। हाँ, सादिक सर बोले पर अगले दिन हम अरेस्ट हो गए भड़काऊ भाषण के चक्कर में, ठीक है। हाँ, किसने कहा था तुम्हें, किसने प्रेरणा दी थी, सादिक सर ने बोला था ठोक बजा के देखना है, इसलिए हम गए ठोक दिए, बट ठोकने का ये तो मतलब होता है। चलो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास द एग्जाम, ओके। चलो, मे हो गया। अब माइट, हो सकता है, सकता था, सकते थे, वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है, कम संभावना, कुड से भी कम संभावना, इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती, शायद, समझ रहे हो। अभी देखो ये संभावना का खेल देख रहे हो, पूरा एकदम नाप तौल के बोलना पड़ेगा, बारिश, ठीक है। बारिश भी गया यार, बरस ही जाते हैं, ये इंग्लिश के चक्कर में जो है ना, ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए हैं कि बरसे, कि कल बरसे, कि अभी बरसे, कि जोर से बरसे। हाँ, इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। शी माइट बी स्लीपिंग नाउ, वो शायद अभी सो रही होगी। अब देखो, मान लो मेरी बहन है, मैं घर से आया पढ़ाने के लिए एडन, ठीक है, और फिर मैं जब आया तब देखा मेरी बहन सो रही थी। कोई पूछा कि वेयर इज योर सिस्टर, सो शी माइट बी स्लीपिंग नाउ, वो शायद अभी सो रही होगी, क्योंकि मैं उसे सोते हुए देखा। लेकिन जब मैं पहुंचू तो पता चला वो फ्रेश वॉश होकर धोके आराम से बैठ कर टीवी देख रही है, नाश्ता कर रही है। तो पॉसिबिलिटी कैसा है, जब मैं बोला वीक ही तो है, पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि वो जग ही गई होगी, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि वो सो ही रही होगी, ठीक है। अब पास्ट एबिलिटी, बीते समय की संभावना, he might have gone to the market, वो शायद बाजार गया होगा, ओके। जैसे मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया अर्पित, हेलो, तो आपकी मम्मी ने कहा सर वो शायद बाहर गया होगा, अभी आता ही होगा, he might be coming sir, ठीक है, क्लियर। she might have missed the train, तो शायद वो ट्रेन मिस कर चुकी होगी, क्लियर।
तो ये है माइट का किस्सा। उसके बाद शैल, करेंगे, करना चाहिए, कर सकते हैं। फ्यूचर इंटेंशन, इंटेंशन है ना इरादा, बोलते हैं तुम्हारा इरादा क्या था, इंटेंशन क्या था, किस नियत से आए हो। फ्यूचर औपचारिक भविष्य की बातें। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा, कल का इरादा है ना, ठीक है। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। वी शैल इन्फॉर्म यू सून, हम जल्द ही तुम्हें सूचित करेंगे। भविष्य में हम इरादा रखते हैं कि आपको सूचना देंगे। आई शैल इन्फॉर्म यू, डोंट वरी, ठीक है। वी शैल कॉल यू, डोंट वरी। वी शैल प्रोवाइड यू। दूसरा सजेशन, सुझाव। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम टहलने चले, सुझाव दे रहे हो अगले को। शैल वी, शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं। क्लियर। और सिंपल, ये तो क्वेश्चन वाला सुझाव है। यू शैल, यू आर फीलिंग नॉट वेल, यू शैल विजिट द डॉक्टर, सुझाव दे रहे हो ना। ओके। एक चीज और, शैल आई हेल्प यू तो करेक्ट है, लेकिन शैल यू हेल्प मी करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि शैल का प्रयोग यूज जो है ना सिर्फ आई और वी के साथ होता है, दैट्स इट। ओके। ये कभी भी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज नहीं होता है, ये मुख्य बात है, इंशा याद रखना। उसके बाद शुड, करना चाहिए, करना उचित होगा। एडवाइस, सलाह। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें ज्यादा पानी पीनी चाहिए, सीधे सलाह दे रहे हैं। ही शुड स्टडी हार्ड, उसे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। इंशा यू शुड स्टडी हार्ड। ओके। उसके बाद ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, जरूरी काम। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। नहीं, वैसे तो हम सेंटेंस लिख दिए हैं, इन दोनों सेंटेंस से मैं जो है इत्तेफाक नहीं रखता। इज्जत हर किसी की होनी चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबकी, ठीक है। दूसरा, we should obey our parents as well as the parents should also understand the children, ठीक है। ऑब्लिगेशन है, पेरेंट्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, understand and cooperate their children, listen to their children, okay, must prioritize their children. उसके बाद हाँ, यहां भी you should not be late, you should to go now, should के बाद to नहीं लगेगा। आई बस समझ में। तो कोई भी मॉडल्स के बाद जनरली जहां नहीं लगा, पहले से नहीं लगा हो, वहां पे टू का यूज नहीं होगा। यू शुड नॉट बी लेट, क्या एडवाइस दे रहे हैं कि आपको लेट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेट, ठीक है। करना चाहिए, करना उचित होगा। ऑब्लिगेशन में करना उचित होगा और एडवाइस में करना चाहिए, समझ रहे हैं। आपको टाइम पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। चलिए अब आइए विल, करेंगे, होगा, इच्छा व्यक्त करना। यूजेस, फ्यूचर एक्शंस, क्लियर। ओके। फ्यूचर एक्शंस, भविष्य की सामान्य बातें। शी विल कॉल यू टुमारो, वो तुम्हें कल कॉल करेगी। सिंपल, करेंगे, होगा, इच्छा व्यक्त करना। फ्यूचर का जो एक्शन है ना भविष्य की, वो भी जनरल बात है। शी विल कॉल यू टुमारो, सिंपल, वो कल तुम्हें कॉल करेगी। विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते दिल्ली जाएंगे। इंस्टेंट डिसीजंस, तुरंत लिया गया फैसला। आई विल टेक टी, मैं चाय लूंगा। ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। ओके, ओपन द गेट, somebody will come, कोई आएगा। ओके, इंस्टेंट डिसीजंस। आई नॉट गो, कहते हैं ना। उसका प्रॉमिसेस एंड डिटर्मिनेशन, वादा और दृढ़ निश्चयता। डिटर्मिनेशन, कोई चीज ठान लियो तो ठान लियो।
आई विल नेवर लाई टू यू, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये क्या है? दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, या एक तरह से वादा भी कह सकते हो। शी विल सक्सीड इन लाइफ, वो जीवन में सफल होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, यू विल विन। उसके बाद थ्रेट्स एंड वार्निंग्स, धमकी और चेतावनी देना है तो आई पनिश यू इफ यू रिपीट दिस मिस्टेक, अगर तुमने यह गलती दोहराई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आई बीट यू। ओके, क्लियर? यू विल रेग्रेट दिस, तुम्हें इसका पछतावा होगा। क्या है? थ्रेट्स एंड वार्निंग्स। यू विल बी इन लॉस, तुम नुकसान में रहोगे। यू विल बी इन ग्रेट लॉस। चलिए, विल हो गया। अब आइए वुड। करते थे, ठीक है, करते, इच्छा व्यक्त करना, अनुरोध करना। यूजेस, पास्ट हैबिट, अतीत की आदतें। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। ठीक है, हाँ, जब मैं बच्चा था तो रोज बाहर खेलता था। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड, आई वुड प्ले करता था, करते। He would always tell us bedtime stories, वो हमें हमेशा कहानियां सुनाते थे। फिर टॉक अबाउट, टेल अबाउट, जब तुम बड़े हो जाओगे, when you will grow older, and when you will have kids, and then your kids will have another kids. Okay, when you'll grow as grandparents, and then you'll tell your grandchildren that there used to be Sadiq sir, he would you know teach us English, वो हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय लेंगे। घर पे मेहमान आता है ना, सर आप चाय लेंगे। ठीक है, क्या आप पानी लेंगे। तो वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू लाइक सम टी। एंड देन इमेजिनरी सिचुएशंस, काल्पनिक स्थितियों के लिए। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो पूरी दुनिया घूमता। ठीक है, काल्पनिक, मैं ये करता, मैं वो करता, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। इफ आई वुड बी देयर आई वुड श्योरली हेल्प। शी वुड बी हैप्पी इफ शी वर्क लेस, अगर वो कम काम करती तो वो ज्यादा खुश होती। इमेजिनरी सिचुएशन, अगर हम सिलेक्ट हुए होते तो आज हम अमेरिका में होते। लोग कहते हैं ना, इफ आई वर सेलेक्टेड आई वुड बी इन अमेरिका। अमेरिका जगह का तो देखो, ज्योग्राफिकली अमेरिका भी अच्छी जगह है, इंडिया तो और अच्छी जगह है, लेकिन जगह कोई भी ज्योग्राफी के साथ साथ 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो, हाँ वही ज्योग्राफी, क्लाइमेट हटाई दो, ज्योग्राफिकल रीजंस, वहां की पब्लिक और वहां की गवर्नमेंट। अगर ये 2 लोग साफ सुथरे हो तो जाहिर सी बात है पॉलिसी साफ सुथरी होगी और जगह साफ सुथरा होगा। शी वुड बी हैप्पी इफ शी वर्क लेस। दिस इज ऑल अबाउट फूड। आगे बढ़ते हैं। मस्ट, जरूरी है, करना चाहिए। ओके, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, मजबूरी और अनिवार्यता। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। ठीक है, नेसेसिटी है ना, जरूरत है ना, स्ट्रॉन्ग। यू मस्ट फॉलो द रूल्स। यू मस्ट कम अर्ली टू लर्न वेल। यू मस्ट कम रेगुलरली, यू मस्ट स्टडी रेगुलरली, यू मस्ट स्टडी हार्ड। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ज्यादा संभावना। ही लेफ्ट अर्ली सो ही मस्ट बी होम नाउ, वो जल्दी निकला था तो वो अब घर पर होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, चांसेस ये है कि घर भी नहीं पहुंचा, घूम फिर रहा होगा। बहुत सारे लोग स्लो वॉकर हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं कि स्लो वॉक करने के साथ साथ जो है ना वॉन्डर होते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं। इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड होगी। प्रोबेबिलिटी है ना, जरूरी नहीं है कि ठंड हो लेकिन बहुत ठंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आउट टू, करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी। वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मोरल ड्यूटी, नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक मॉरल ही है। लेकिन क्या करें, गरीब भी इतना हो गए हैं,
कि खुद गरीब हो जाएंगे हम लोग गरीबों की मदद करते करते, समझ रहे हो? तो आजकल देखो, गरीबों की मदद करना चाहिए, समझ में आ रहा है, लेकिन किसको? राह चलते जो फकीर दिखते हैं या फिर कोई स्टेशन वगैरह पे या हर जगह स्टैंड्स वगैरह पे दिखते हैं, उनका हमें भी रुकते हैं। लेकिन हो सकता है मदद करने का 3-4 और तरीका होता है। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार में, भाई बहनों में, दोस्तों में जो फाइनेंशियली वीक है, आप उनको हेल्प कर दीजिए दोस्ती के नाते। अब हम जाके मत बोलिए हाँ भाई तुम्हें भीख दे रहा हूं आजा, ठीक है? चैरिटी बिगिंस एट होम। आप उसको जाके उसको किसी जरिए से आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। आप जैसे आप अपने दोस्त के घर पे गए, अब देखा, अभी आप लोग को नहीं करना, आप लोग अभी चैरिटी मत करना, ओके? अभी आप लोग जो करना, मम्मी पापा को हेल्प करना, दैट्स इट, अपने घर में करना। जब तुम लोग बड़े हो जाओ तो अपने दोस्त के घर गए और देखा कि दोस्त के घर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं, उसके घर में फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, टीवी नहीं मत देना, समझ आ रहे हैं? हाँ, ठीक है, जरूरत की चीजें नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है, तो खरीद के गिफ्ट कर दो उसको, और दोस्ती भी और पक्की हो जाएगी और उसका काम भी हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मजबूत सलाह। दूसरा, मोरल ड्यूटी में यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यू आउट टू सी अ डॉक्टर, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, मजबूत सलाह, तो भाई करना ही होगा। यू आउट टू, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बीमारी बढ़ गई है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शी आउट टू बी मोर केयरफुल, उसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। यू आउट टू बी मोर केयरफुल, ठीक है? इंशा, यू आउट टू बी मोर स्टूडियस, आपको और पढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा? यू आउट टू मेक मोर इफर्ट्स, आपको और मेहनत करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है बेटा, क्योंकि कुछ पाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, पागलपंती जरूरत है, हार्ड इफर्ट्स। जब तक दिल दिमाग शरीर पैर नहीं थके, फिर वो कामयाबी ला नहीं सकता बेटा। आराम आराम से कामयाबी कभी नहीं मिलती। उसके बाद, नो टू कम्स आफ्टर एनी मॉडल, प्रोवाइडिंग बेरिंग व्हेन दे आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द मॉडल, यानी मॉडल्स के साथ कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं आता है, सिवाय उनके बेरिंग, यानी सिवाय उनके, ठीक है, जो ऑलरेडी उसके पार्ट हैं। जैसे आउट टू ऑलरेडी पार्ट है, इसलिए यहां पर आउट टू पूरा का पूरा मॉडल ही है, लेकिन उसके अलावा कुड, कैन, मस्ट, इन जो भी आया ना अब तक 9, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनमें कभी भी टू आगे नहीं लगेगा, लगेगा तो वर्बल लगेगा, ओके? अब आइए नीड, जरूरत, आवश्यकता, नेसेसिटी। यू नीड टू ड्रिंक वाटर, क्लियर? तुम्हें पानी पीने की जरूरत है। शी नीड्स टू स्टडी हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया अभी, सर अभी 1 मिनट पहले इतना देर से मॉडल पढ़ा है तो ये बात नहीं बोले आप कि सर टू नहीं आएगा मॉडल के बाद? हाँ ठीक है सर, यहाँ टू आया इसलिए आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसका तुरंत बाद जो है ना, आप नीड के बाद टू लगा दिए हैं। खुद रूल बनाते हैं, खुद रूल तोड़ते हैं, क्या बोलते हो? हैं निहाल, ये तो गड़बड़ हो गया जी। भैया ये टू प्रीपोजिशन नहीं है, टू ड्रिंक जो है ना ये इन्फिनेटिव है, समझ रहे हो? ये 2 + V1 ये अलग चीज है, क्लियर? तुम्हें पानी पीने की जरूरत है, यू नीड टू ड्रिंक वाटर, यू नीड टू स्टडी हार्ड, हो गया? नेगेटिव सेंटेंसेस, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी डिड नॉट कम अर्ली, उसे जल्दी आने की जरूरत नहीं है, ओके? ये सब सेमी मॉडल्स है। डेयर, मेन मॉडल्स, अब ये आउट टू तक खत्म हो गया, मस्ट तक, नीड हो गया। डेयर, हिम्मत करना, साहस होना, करेज, हिम्मत साहस दिखाना। नो वन डेयर्स टू चैलेंज हिम, कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। ही डेयर्ड टू स्पीक द ट्रूथ, उसने सच बोलने की हिम्मत की। नेगेटिव सेंटेंसेस में, ही डेयर नॉट डिसोबे हिज टीचर, वो अपने शिक्षक की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता। शी डेयर नॉट लाई, वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती, ठीक है? ओके, अब ये देखो, शी डेयर नॉट से एनीथिंग या शी डेयर्स नॉट से एनीथिंग। डेयर के बाद एस नहीं आएगा क्योंकि ये मॉडल है, वर्ब नहीं है,
डेयर यहाँ पर मॉडल है और मॉडल में पहले ही बोल दिया उसका फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आएगा। ओके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, शी डेयर्स नॉट से एनीथिंग, शी डेयर नॉट से एनीथिंग, व्हिच वन इज द करेक्ट। तुम कहोगे शी के साथ तो _5 लगता है, फटाक से टिक मार दोगे, नहीं, ये मॉडल है डेयर। ओके, तो शी डेयर नॉट से एनीथिंग। अब आओ आज का आखिरी, यूज्ड टू, आदत होना, पहले ऐसा करते थे, पास्ट हैबिट, बीते समय की आदतें। he used to smoke but now he has quit। वो पहले सिगरेट पीता था लेकिन अब वो छोड़ चुका है। I used to go jogging every morning। मैं पहले हर सुबह जॉगिंग करने जाता था। पास्ट सिचुएशन, अतीत की स्थितियां। There used to be a park here। यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था। She used to live in Delhi। वो पहले दिल्ली में रहती थी। I used to watch cartoons। I used to watch cartoons, पास्ट में used to ही सही है। आई बात समझ में क्लियर? ये नहीं होगा, हमेशा आई यूज्ड टू ही यूज होगा। यूज टू डी जो लगा हुआ है ना पास्ट, यही रूल है, क्योंकि मॉडल है, बदलाव नहीं होगा। ओके, यूज ऑलरेडी एक वर्ब भी है, यूज, यूज्ड, यूजिंग, यूजेज। ओके, यू कैन यूज माई फोन। लेकिन यहां पर क्या, पास्ट हैबिट, पास्ट सिचुएशन, अतीति की स्थितियां बताने के लिए, शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, वो पहले दिल्ली में रहती थी। पहले की स्थिति क्या था, देयर यूज्ड टू बी, यूज्ड यूज होगा, देयर यूज्ड टू बी नहीं, यूज्ड होगा, ये ऊपर वाला। देयर यूज्ड टू बी पार्क हियर, यहाँ एक पार्क हुआ करता था। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द मॉडल्स। आई होप यू हैव नो डिफिकल्टी एट ऑल। जिन लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं है, पुट येलो हैंड काइंडली, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसकी